Hello everyone, how are you? Hope you are doing well. So today I am bringing to you the part second of nutrition in plants. As you know, I have started class 7 science. Okay, and I have started the first chapter, that is nutrition in plants. I have already uploaded part 1 of this chapter. So before watching this video, you can watch part first. Okay, so let's start part 2. My name is Prerna. So we'll see what we have studied in part 1. Let's have a summary of that. So what we have studied, we will discuss it now. So what we have read in first part, we'll see. Food is essential for all living organisms. There are 5 major components of food: carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. These 5 components are called nutrients. Okay, plants can make their food themselves, but animals cannot make their own food. They get their food from plants and animals. There are 2 modes of obtaining food, means 2 modes of nutrition in organisms, that is autotrophic and heterotrophic. So autotrophic means organisms make their own food, and heterotrophic means the organism obtain food from other organisms. Plants prepare their food by the process of photosynthesis. Plants use carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight, and glucose and oxygen is formed. Okay, glucose and oxygen is formed in the presence of chlorophyll and sunlight. Sunlight is necessary for the process of photosynthesis to occur. Okay, photosynthesis will not take place if there will be no sunlight. So sunlight is very necessary for the process of photosynthesis. Next is algae also contain chlorophyll and carry out photosynthesis. Algae are the organism that occur in the stagnant water. Okay, so these are green in color. They carry chlorophyll and can carry out photosynthesis and can prepare their own food. Okay, plants obtain nitrogen when bacteria present in soil convert atmospheric nitrogen into a form that can be absorbed by the roots of the plant along with water. I told you that there is a lot of nitrogen in the atmosphere. Okay, nitrogen gas is present in the atmosphere, but plants directly cannot use that nitrogen gas. So how the plants get nitrogen? There are some bacteria present in the soil. What that bacteria do? The bacteria convert that atmospheric nitrogen into soluble forms that plants can take. Okay, so the process is called nitrogen fixation. So this was the recap. Let's start the part second. So in part first, we have studied about the photosynthesis, food making process in plants. Okay, we have learned that plants are autotrophic. Autotrophic means they can prepare their own food. Okay, most plants on this earth are autotrophic, but there are some exceptions. Some plants are there which do not follow autotrophic mode of nutrition. So there are some other mode of nutrition that plants that are observed in plants. So we will see. Some plants do not have chlorophyll. They cannot carry out photosynthesis. Okay, some plants are there which are not green in color. Okay, so they cannot carry out photosynthesis. They cannot make their own food. Such plants depend on the food produced by other plants. So what these plants do? They do not have chlorophyll. They cannot prepare their own food. Then what these plants do? They will depend on the food produced by other plants, means they will get the food from other plants, or in some cases animals also. Okay, they use the heterotrophic mode of nutrition. I have told you that what is heterotrophic mode of nutrition, in which organisms take their food from other organisms. Okay, so there are some exceptions in plant. There are some plants that follow heterotrophic mode of nutrition. Let's see. Examples of heterotrophic plants: those plants that take their food by the process of heterotrophic mode of nutrition, means those plants that are heterotrophs. Okay, let's see. First is cascata. We call cascata amar bel in Hindi. So amar bel क्या होती है? Yellow tubular structures twining around the stem and branches of a tree. आपने कुछ trees देखे होंगे जिनके ऊपर क्या होता है, येलो कलर की
छोटी छोटी धागे जैसे थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, वो उस प्लांट का, उस ट्री का पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है. दैट इज अ डिफरेंट प्लांट. ओके, डिफरेंट प्लांट है एंड दैट इज येलो इन कलर. इट इज येलो इन कलर मीन्स इट डजंट कंटेन chlorophyll because these are not green in color. Okay, so these thread like structures, this is also a type of plant that is called cascata or amarbeil. Okay, these are the yellow tubular structures that are twinning around the stem and branches of a tree. कोई भी ट्री के स्टेम या ब्रांचेस के ऊपर ऐसे गोल गोल घूम के ट्विन कर लेते हैं, मीन्स उसके ऊपर अटक जाते हैं. ओके, सो इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. As you can see in the figure that it is yellow in color, so we can see that it doesn't have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing and deprives it of valuable nutrients. Okay, so what these yellow looking plants or what cascata plant do to derive nutrition, because it also needs food, okay, and it doesn't have chlorophyll, it doesn't prepare its own food. So what it will do, it will cling to some other tree, okay, and what it will do from there, it takes ready made food from the plant on which it is climbing. जिस ट्री पर, जिस प्लांट पर अमर बेल या कैस्केटा की जो बेल है वो क्लाइम करती है, उसी ट्री से वो रेडीमेड फूड लेती है. ओके, जिस ग्रीन ट्री पर वो होती है, वो ग्रीन ट्री क्या करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना खाना बनाता है, और अमर बेल और कैस्केटा प्लांट क्या करता है, उसी से पका पकाया मतलब बना बनाया खाना उससे ले लेते हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो वो ट्री है जिसके ऊपर वो बेल है, कैस्केटा प्लांट है, उसके पास क्या होगा, उसके पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाएंगे. ठीक है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे. सो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसमें जो अमर बेल है, कैस्केटा प्लांट है, दैट एक्ट्स एज अ पैरासाइट. ठीक है, और जिस प्लांट पर कैस्केटा प्लांट की जो अमर बेल है, दैट इज द होस्ट. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसके अंदर दो तरह के ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, और एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, दूसरे से न्यूट्रिएंट्स लेता है. ठीक है, बट इन टर्न वो उसका नुकसान करता है. कैसे नुकसान करता है, जैसे कि कैस्केटा के केस में क्या हो रहा है, जो कैस्केटा है वो अपने होस्ट प्लांट मतलब जिस पर वो है, उसके ऊपर क्या कर रहा है, उसके ऊपर है, उससे न्यूट्रिएंट्स भी ले रहा है, लेकिन उसके खुद के न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रहा है, कम कर रहा है. ठीक है, तो उसकी ग्रोथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे उसकी ग्रोथ हैम्पर हो रही है, उसकी ग्रोथ रुक रही है. ठीक है, तो जो होस्ट प्लांट है उसका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है. ठीक है, तो इस तरह का एक रिलेशनशिप जिसके अंदर दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं और एक का फायदा होता है और दूसरे का क्या होता है, नुकसान होता है. तो इस तरह के मोड को बोलते हैं पैरासिटिज्म. ठीक है, इस तरह के रिलेशनशिप को बोलते हैं पैरासिटिज्म. तो यहाँ पे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज, आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट ऑन द प्लांट्स? See, we are also taking nutrients from the plants. Okay, so are we also parasites? So the answer is no. We are not the parasite, and the other animals also, they are also not the parasites on the plants, because first thing, we are not living on the plants. Okay, we are not directly living on the plants and the other animals also. We are taking energy, we are taking food from the plants, but we are not doing any harm to the plants. Okay, we are not doing any harm. Okay, so we are not parasite. Okay, so the next question is, are mosquitoes, bedbugs, leeches that suck our blood are also parasite? जो मॉस्किटोज होते हैं, बेडबग्स होते हैं, लीच होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारा ब्लड सक करते हैं ना, तो क्या वो पैरासाइट हैं? यस, द आंसर इज यस, दीज आर पैरासाइट्स. क्यों है ये पैरासाइट? क्योंकि वो हमारी बॉडी पर आते हैं और हमारा ब्लड सक करते हैं और हमें नुकसान करते हैं. कैसे नुकसान करते हैं? हमारा ब्लड सक करते हैं. ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, हो सकता है कि हमारी बॉडी में कुछ डिजीज क्रिएट कर सकते हैं वो. ठीक है, कुछ पैथोजेंस को हमारे ब्लड में डाल सकते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया. तो इस तरह से क्या करते हैं वो बैक्टीरियाज, वायरस या और भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें वो क्या करते हैं, कहीं और से लाके वो हमारी बॉडी में
डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, वो हमारा नुकसान करते हैं। सो यस, मॉस्किटोज, बेडबग्स, लीचीज, दीज सक अवर ब्लड एंड दीज आर कॉल्ड पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। Next is insectivorous plants. We'll talk about the insectivorous plants now. Insectivorous means insects को खाने वाले plants. अब plants भी ऐसे होते हैं जो insects को खाते हैं, yes. कुछ plants ऐसे होते हैं जो insects को खाते हैं। आपने कभी सुना है ऐसा पौधा जो insects खा रहा है? इंसेक्ट को पौधा खाते हुए सुना होगा, है ना। इंसेक्ट लीव्स खाता है, छोटी छोटी लीव्स खाता है, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो लीव्स खाते हैं। क्या कभी आपने उल्टा केस देखा है कि जो लीफ है प्लांट की, ठीक है, प्लांट की लीव्स जो होती हैं वो इंसेक्ट को खा रही हैं, ठीक है, ऐसा होता है इन सम केसेस। सो लेट्स स्टडी हाउ दिस हैपन्स। सो सम प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं। उनकी लीव्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, जिसमें जो इंसेक्ट है वो ट्रैप हो जाता है, और वो इंसेक्ट जब उसमें ट्रैप हो जाता है तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का न्यूट्रिशन भी होता है। तो इस तरह के प्लांट्स को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, मीन्स इंसेक्ट्स खाने वाले प्लांट्स, ओके, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। सो द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट इज पिक्चर प्लांट, ओके। यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है पिक्चर प्लांट। इसकी आप लीव्स देखो किस तरह से हैं। द शेप ऑफ द लीव इज लाइक पिक्चर, जैसे एक सुराही होती है ना, उस तरह की शेप है। उसके ऊपर एक जो पिक्चर शेप आपको लीव दिख रही है उसके ऊपर एक फ्लैप बना हुआ है, लिड जिसको बोलते हैं लिड, एक ढक्कन के जैसा होता है, ओके। तो पिक्चर प्लांट में क्या होता है, द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। ये जो आपको पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है फिगर के अंदर, दिस इज द लीफ, ओके। प्लांट की ये लीफ होती है जो इस तरह से मॉडिफाई हो गई है कि जिसने एक पिक्चर की शेप ले लिया, और उसके ऊपर एक लिड होती है, फ्लैप होता है ढक्कन के जैसा, ठीक है। सो द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। तो जो लिड है, ये ढक्कन है, ये क्या करता है, पिक्चर का जो माउथ है, मतलब जो लीफ है उसका जो माउथ है वो ओपन और क्लोज कर देता है। तो अब होता क्या है, अब ये इंसेक्ट को कैसे खाता है, देखो। सो इस पिक्चर के अंदर, मतलब इस लीफ के अंदर कुछ हेयर्स होते हैं। पिक्चर के अंदर क्या होते हैं, हेयर होते हैं। और उन हेयर्स के अंदर क्यों होते हैं हेयर्स, वो ताकि उसके अंदर जो इंसेक्ट होता है वो ट्रैप हो जाता है, ठीक है। कैसे ट्रैप होगा, देखो, व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जब एक इंसेक्ट क्या करता है उस पिक्चर के ऊपर या वो लीफ है उसके ऊपर आता है, आके बैठता है, तो उससे क्या होगा, द लिड क्लोजेज। तो लिड एकदम से, क्या जो लिड है, ढक्कन है, फ्लैप होता है, वो बंद हो जाता है। जैसे ही इंसेक्ट उसके ऊपर आके बैठा वैसे ही वो फ्लैप क्या हो गया, बंद हो गया, और इंसेक्ट अंदर फंस गया, है ना। वो जो सुराही है या वो जो लीफ है उसके अंदर वो इंसेक्ट क्या हो जाता है, फंस जाता है। और इंसेक्ट जो लीफ होती है उसके अंदर क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उन हेयर्स में वो इंसेक्ट क्या हो जाता है, उलझ जाता है, ठीक है। तो वो बाहर निकलने की कोशिश भी करता है लेकिन वो बाहर निकल नहीं पाता है। तो क्या होता है, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। तो जो पिक्चर लाइक लीफ है, उस लीफ के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस मतलब कि ऐसे एंजाइम सिक्रेट होते हैं जो उस इंसेक्ट को ब्रेक कर करके, तोड़ तोड़ के उसको बिल्कुल कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से जो लीफ होती है, वो जो प्लांट होता है उसको वो डाइजेस्ट कर लेता है उस इंसेक्ट को, ठीक है। इस तरह से वो प्लांट क्या करता है, इंसेक्ट को खा जाता है। देखो मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखा रही हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। लेट्स सी। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने देखा कैसे एक पिक्चर लाइक लीफ है, उसके अंदर एक इंसेक्ट गया छोटा सा, ठीक है। और जैसे ही इंसेक्ट वहां पर बैठा वैसे ही जो ऊपर उसका लिड था, उसका फ्लैप था, वो एकदम से बंद हो गया और इंसेक्ट अंदर फंस गया। जब इंसेक्ट अंदर फंस जाता है तो इंसेक्ट जो लीफ होती है, पिक्चर लाइक लीफ है, उसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा न्यूट्रिएंट्स उनको मेनली इंसेक्ट से मिलता है, दैट इज नाइट्रोजन, ठीक है। वो इंसेक्ट को क्यों ट्रैप करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन। इंसेक्ट को खाकर उनको कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है। अब देखो, द क्वेश्चन इज वाई पिक्चर प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट्स
इफ इट इज ग्रीन एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब देखो मैंने आपको बताया था कि कुछ प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन नहीं होते हैं, ठीक है, ग्रीन नहीं होते हैं मतलब उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ पिक्चर प्लांट, देखो अभी मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर प्लांट का फिगर। देखो इसके अंदर जो पिक्चर प्लांट है दैट इज ग्रीन इन कलर। अब ग्रीन कलर का है तो इट मीन्स उसके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है मतलब वो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट कर सकता है, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पिक्चर प्लांट में होती है तो उसको इंसेक्ट खाने की क्या जरूरत है, इंसेक्ट पर फीड करने की क्या जरूरत है, ठीक है। सो द आंसर इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लाइक पिक्चर प्लांट ग्रो इन सोयल विच डू नॉट कंटेन सफिशिएंट नाइट्रोजन। मैंने आपको बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें जो न्यूट्रिएंट वो बनाते हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बट प्लांट को क्या चाहिए, और नाइट्रोजन भी तो चाहिए। और हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस होती है प्लांट्स के जो सोयल जो होती है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस से प्लांट को नाइट्रोजन अवेलेबल कराते हैं। लेकिन पिक्चर प्लांट के केस में क्या होता है, जहां जिस सोयल में पिक्चर प्लांट ग्रो करता है तो उस सोयल में क्या होता है, सफिशिएंट नाइट्रोजन नहीं होती है, तो सोयल के थ्रू या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस के थ्रू उसे रिक्वायर्ड नाइट्रोजन की अमाउंट नहीं मिल पाती है, ठीक है। अब सॉइल से तो उसको नाइट्रोजन मिल नहीं रही है बट प्लांट को नाइट्रोजन तो चाहिए ना, ठीक है। तो क्या होता है, देखो प्लांट इज ग्रीन इन कलर एंड इट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस टू ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट बट टू ऑब्टेन नाइट्रोजन इट फीड्स ऑन इंसेक्ट्स। ओके, इसीलिए वो इंसेक्ट को फीड करता है नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और नाइट्रोजन क्यों चाहिए प्लांट को, फॉर इट्स ग्रोथ। अगर वो इंसेक्ट को फीड नहीं करेगा तो उसको नाइट्रोजन नहीं मिलेगी, नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। और हम न्यूट्रिएंट्स क्यों लेते हैं, खाना क्यों खाते हैं, फॉर आवर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए तो करते हैं ना ये सब। तो ग्रोथ के लिए वो क्या करता है, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करता है, इंसेक्ट को ट्रैप करके और उसको डाइजेस्ट करके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स वर्ड आपने सुना है कभी, सेप्रोट्रॉफ वर्ड नहीं सुना होगा लेकिन आपने मशरूम देखे होंगे, आपके घर पे मशरूम ज़रूर आते होंगे जिसकी सब्जी बनती है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई है मशरूम की। जो फर्स्ट पिक्चर है यहाँ, ये है पैकेट ऑफ मशरूम, मशरूम का पैकेट है जिसमें आपको बहुत सारे मशरूम दिख रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पिक्चर जो है उसमें आपको एक मशरूम दिख रहा है ग्रो होता हुआ, ठीक है। वो कहाँ ग्रो कर रहा है, डिकेड मटेरियल। डिकेड मटेरियल होता है डेड मटेरियल, ठीक है। डेड प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स जब डेड हो जाते हैं, ठीक है, वो एक इस तरह से मटेरियल बन जाता है, ब्लैक कलर का मैन्योर टाइप मटेरियल बन जाता है, ठीक है। जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह मतलब गल सड़ जाते हैं, हम बोल सकते हैं गले सड़े मरे हुए, ठीक है। तो उस पर मशरूम ग्रो करता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि सेप्रोट्रोफ क्या होता है। देखो मशरूम सेप्रोट्रोफ है या नहीं है, मतलब मशरूम सेप्रोट्रोफ से कैसे रिलेटेड है, लेट्स सी। सम ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल्स डू। देखो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके मुंह तो होते नहीं कि वो खाना खा लें या कुछ भी खा लें, है ना। सो दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो अब यहाँ पे मैं क्या बात कर रही हूँ कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके ना तो मुंह होता खाने के लिए कि वो प्लांट का कुछ प्रोडक्ट लेंगे और उसको खा लेंगे। दूसरा, वो ग्रीन भी नहीं होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं होता है कि वो अपना खाना खुद से बना सकें। तो उस केस में वो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, उनको भी तो खाना चाहिए ना, तो वो कहाँ से खाना लेंगे। सो वॉट दे विल डू, दीज ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म अपना खाना कहाँ से लेते हैं, डेड, डेड मतलब मरे हुए, डिकेइंग मतलब जो सड़ जाती हैं चीज़ें धीरे धीरे। क्या है, कोई भी चीज़ है, आप देखोगे केले का छिलका आप ग्राउंड पे अगर गिरा हुआ होगा वो धीरे धीरे बिल्कुल ऐसा काला हो जाएगा, फिर वो सड़ जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं डिकेइंग। वो क्या हो रहा है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है। और उसको कौन करता है, ऐसे बैक्टीरियाज, ठीक है। बैक्टीरियाज क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को, कोई भी मरी हुई चीज़ है, डेड है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, डीके कर देते हैं, ठीक है। डीके मतलब उसको डीकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सब्सटेंसेस में उसको ब्रेक कर देते हैं और उसको डाइजेस्ट कर देते हैं एक तरह से और उसको खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो जो मटीरियल है वो डीके हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल पे ग्रो करते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, मीन्स ऐसे मटेरियल्स को खाते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स,
उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ्स. ओके, एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, so what is saprotrophic mode of nutrition? In which organism feed on and the organism take food from dead and decaying matter. Okay, the example of saprotrophs or saprotrophic mode of nutrition is mushroom. ठीक है, तो मशरूम क्या है? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, अपना न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं saprotrophs. ओके, so we'll study about the saprotrophic mode of nutrition by an activity here. यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिखा रही हूँ मैं, और आप अपने घरों में वो easily कर सकते हो. So what is the activity? It is very easy. So let's see. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर. आपको क्या करना है? एक ब्रेड का पीस लेना है, सबके घर पे मिल जाता है. ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा भी ले सकते हो आप, और उसको हल्का सा गीला कर देना है. ठीक है, मॉइस्ट कर देना है, हल्का सा उसके ऊपर पानी ऐसे छिड़क देना है. तो क्या होगा? लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days और अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम. और उसको आप एक नमी वाली जगह पे, गर्मी का मौसम होता है ना, ठीक है, और क्या होता है, जब नमी वाला मौसम होता है, चिपचिपा मौसम होता है, उस टाइम पे आपको उस ब्रेड के पीस को थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्ट करके, मतलब उसको हल्का सा गीला करके आपको रख देना है कहीं पे भी. फ्रिज में नहीं रखना है. ठीक है, आपने सुना होगा ना, ब्रेड का पैकेट आप लाते हो तो उसको कूल प्लेस पर रखो, ड्राई एंड कूल प्लेस पर. ठीक है, आपको अपोजिट करना है. ठीक है, उसको ड्राई भी नहीं करना है, मतलब उसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर देना है, और उसको वार्म प्लेस पर, ह्यूमिड प्लेस पर बाहर रख देना है. कहीं पर भी आप रख सकते हो. ठीक है, सो कब तक के लिए रखना है आपको? 2-3 दिन के लिए. ठीक है, 2-3 दिन के लिए जब आप उस ब्रेड के पीस को रखोगे, तो आप 2-3 दिन के बाद क्या देखोगे? आपको कुछ फ्लफी से पैचेस, उसके ऊपर धब्बे दिखाई देंगे. ठीक है, इसमें देखो, इस पिक्चर में आपको ब्रेड का पीस दिखाया गया है, उसके ऊपर कुछ धब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको. ठीक है, तो वो पैचेस जो होते हैं, वो धब्बे जो होते हैं, वो व्हाइट कलर के भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, और दूसरे कलर के भी हो सकते हैं. ठीक है, मतलब वो व्हाइट कलर से जो आपका ब्रेड है, ब्रेड का स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा, आपको उसके ऊपर कुछ दिखाई देगा. ठीक है, ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास. और आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास होगा तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से उन पैचेस को देख सकते हो. वो जो स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब ब्रेड के ऊपर जो है, वो आपको अच्छे से दिखाई देगा. सो वॉट आर दीज ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द ब्रेड. ठीक है, हमने ब्रेड को 2-3 दिन के लिए बाहर रखा, उसके ऊपर कुछ ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर गए. ठीक है, तो वो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं फंगी. ठीक है, आपने फंगस सुना होगा. बारिश के मौसम में आपके शूज में भी फंगस लग जाती है, या कोई भी चीज़ है बाहर रखी हुई है, खाना है, उसके अंदर फंगस लग जाती है. ठीक है, वो फंगी होती है. फंगस मीन्स सिंगुलर, एंड फंगस का जो प्लूरल होता है दैट इज फंगी. सो जो ऑर्गेनिज्म ब्रेड के ऊपर आपको दिखाई देंगे, दीज आर फंगी. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. उनका भी एक अलग तरीका है अपना खाना लेने का. दे सिक्रीट डाइजेस्टिव juices on the dead and decaying matter and convert it into a solution. ठीक है, मैंने आपको बताया था जो सेप्रोट्रोफ्स होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं. ठीक है, अपना न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स वो डेड और डिकेइंग मैटर से पूरा करते हैं. सो क्या होता है, फंगस जो होती है, फंगी क्या करती है? वो जो डेड और डिकेइंग मैटर है, ठीक है, वहां पर जाती है, जो गली सड़ी जो भी चीज़ होती है डेड और डिकेइंग, उसके पास जाती है और उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती है. ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए. डाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को ब्रेक करने के लिए, छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक करके उसको सिंपल बना दे ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद वो इजीली उसको खा सके. देखो, हम जब खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस होती है. ठीक है, हम पूरा फूड खाते हैं, वो जो फूड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, मीन्स छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होता है. डाइजेशन हमारे माउथ से, टीथ से स्टार्ट होता है, टीथ से हम उसको ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं, और वो इंटेस्टाइन तक जाते जाते वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है ना. तो इस तरह से हम खाना खाते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है. लेकिन जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम फंगी की बात करेंगे, उनके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है, तो वो क्या करते हैं, वो खाने को खाने से पहले ही उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं. ठीक है, बॉडी के अंदर जाके उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, वो पहले खाने को डाइजेस्ट करते हैं. ठीक है, फिर उसको खाते हैं. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, डाइजेस्ट कैसे करते हैं खाने को? वो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं. सिक्रीट मतलब रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से. ठीक है, तो उन डाइजेस्टिव जूसेस को वो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर रिलीज कर देते हैं.
तो और जो वो डेड और डिकेइंग मैटर होता है उन डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिलकर क्या बन जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन की फॉर्म ले लेता है। तो फिर क्या होता है, जब वो सॉल्यूशन बन जाता है तब वो उस सॉल्यूशन में से न्यूट्रिएंट्स को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, दे जस्ट एब्जॉर्ब। उनका जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो बॉडी के बाहर ही होता है। हमारा कैसे होता है, हमारा बॉडी के अंदर होता है, लेकिन उनका क्या है, डाइजेशन प्रोसेस बाहर होता है। वो पहले डाइजेस्ट कर देते हैं, सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसको सिंपली एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है, इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, इज कॉल्ड सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स डेड और डिकेइंग मैटर को सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे ले लेते हैं, ठीक है। उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड प्लांट्स विच यूज सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रोफ्स, ठीक है। जो प्लांट सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपने न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है, उन प्लांट्स को हम बोलते हैं सैप्रोट्रोफ्स, ठीक है। अब जो हम फंगी की बात कर रहे हैं, फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। कोई भी आर्टिकल है, जरूरी नहीं कि खाने की चीज है, कोई भी चीज हो सकती है जो आप हॉट और ह्यूमिड वेदर में आप छोड़ दोगे, स्पेशली बारिश के मौसम में आप देखोगे पिकल्स, आपके जो अचार होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, कई बार उसमें भी फंगस लग जाती है। लेदर होता है, लेदर के शूज वगैरह होते हैं, बेल्ट होती है, उसमें भी आपको फंगस दिखाई देती है, ठीक है। क्लोथ्स, कुछ कपड़ों पे भी फंगस लग जाती है, और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिसपे फंगस लग जाती है। तो फंगस कब ग्रो करती है, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर के अंदर, ठीक है। अगर वेदर हॉट और ह्यूमिड होगा तो फंगस बहुत जल्दी ग्रो करती है। अगर हम अपोजिट केस देखें, क्लाइमेट कोल्ड है, ड्राई है, ठीक है, तब फंगस ग्रो नहीं करेगी। इसीलिए जब रेनी सीजन होता है, तो रेनी सीजन में क्या होता है, वेदर हॉट होता है और ह्यूमिड भी होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, जो फंगस है वो बहुत जल्दी ग्रो करती है। अब हम फंगी के बारे में, मीन्स फंगस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉन ग्रीन, ठीक है। फंगी क्या होती है, नॉन ग्रीन होती है, मीन्स ग्रीन कलर की नहीं होती है। एंड गेट देयर फूड बाय सैप्रोट्रोफिक और पैरासिटिक मोड। अभी हमने सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, जिसके अंदर जो फंगी है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर रही है, ठीक है। कुछ फंगी ऐसी होती हैं जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अपनाती हैं, ठीक है। तो वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो पूरा करती हैं, ठीक है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमने देखा। तो फंगी के एग्जाम्पल हम देखेंगे, मशरूम्स, मशरूम इज अ टाइप ऑफ फंगस, यीस्ट, ठीक है, ब्रेड मोल्ड एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब जो है दीज आर द फंगी। Many fungi like yeast and mushroom are useful, but some fungi cause disease in plants, animals and humans, ठीक है। अब हम फंगी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि कुछ फंगी जो होती हैं वो हमारे लिए यूजफुल होती हैं, जैसे कि मशरूम है, ठीक है, मशरूम की आप सब्जी बनाते हो, खाते हो उसे, ठीक है, सो दैट इज यूजफुल फॉर अस। यीस्ट जो होता है, यीस्ट भी हमारी बहुत सारी चीज़ों में, खाने की चीज़ों में काम आता है, चीज़ों को फर्मेंट करने के लिए। आप आपने डोसा खाया होगा, ठीक है, तो डोसे को आप, डोसा इडली जो होता है वो कैसे बनता है, पहले हम उसको क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं, ठीक है। बैटर जो होता है वो फर्मेंट होता है, तो फर्मेंट करने के लिए हम उसमें यीस्ट डालते हैं। ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड के अंदर, ब्रेड को बनाने के लिए भी यीस्ट की जरूरत होती है, ठीक है। और अल्कोहल जो बनाई जाती है, अल्कोहल समझते हो ना आप, जो शराब होती है, उसके अंदर भी अल्कोहल बनाने के लिए भी यीस्ट की जरूरत होती है। तो यीस्ट भी क्या है, हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। तो yeast is a type of fungus that is useful for us, and mushroom is also useful for us, but some fungi cause diseases in plants, animals and humans। लेकिन कुछ फंगी ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे अंदर, एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर डिजीज फैलाती हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो उनकी लीव्स वगैरह खराब हो जाती हैं बिकॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन। आपने ह्यूमंस के अंदर भी सुना होगा, स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, स्किन एलर्जीज हो जाती हैं, दैट इज मेजरली ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं फंगस के। अब है सम फंगी आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन, लेकिन कुछ फंगी ऐसी भी हैं जिनसे मेडिसिन भी बनाई जाती हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। आपने पेनिसिलिन का नाम सुना होगा, पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है जो फंगस से बनती है, ठीक है।
तो इस तरह से फंगस जो है वो हमारे लिए हार्मफुल भी होती है इन सम केसेस एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल इन सम केसेस। ओके, सो द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। देखो क्या होता है, फंगस आती कहाँ से है, हमने ब्रेड को बाहर रख दिया था या फिर जो भी लेदर मटेरियल है या कोई भी खाने की चीज़ है, अचार वगैरह है, उस पर फंगस आती कहाँ से है। तो क्या होता है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, हवा है, हवा के अंदर बहुत सारे फंगल स्पोर्स, मतलब फंगल के छोटे 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 स्पोर्स, मतलब हम बोल सकते हैं कुछ सीड्स के जैसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, फंगल सीड्स होते हैं। तो जब वो लैंड करते हैं किसी चीज़ पर, मतलब वो बैठ जाते हैं कौन सी चीज़ पर, जब वो ऐसी जगह पर बैठ जाते हैं जो कि वार्म भी है और वेट भी है, ठीक है, मॉइस्ट है और वार्म है, तो उनको क्या है, एक पर्टिकुलर कंडीशंस मिल जाती हैं ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो फंगल स्पोर्स को ग्रो करने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए, मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशंस चाहिए। तो जब उनको मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशंस मिल जाती हैं, मतलब जब वो किसी ऐसे चीज़ पर लैंड कर जाते हैं जो मॉइस्ट भी है और वार्म भी है, तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं और फिर वो ग्रो कर जाते हैं, जैसे कि ब्रेड के ऊपर किए थे ना। ठीक है, तो ब्रेड के ऊपर जो फंगस ग्रो की थी उसे हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड फंगस। ठीक है, तो इस तरह से जो फंगस है ग्रो करती है। नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अभी हमने पैरासिटिक रिलेशनशिप देखा, उसके बाद सैप्रोफिटिक रिलेशनशिप देखा, उसके बाद हम देखेंगे सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा। अब नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, देखो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या पैरासिटिक रिलेशनशिप में क्या था, दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो उसमें क्या है, एक टाइप का ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, वन इज टेकिंग एडवांटेज एंड दूसरा क्या हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म एडवांटेज ले रहा है वो सामने वाले का, वो दूसरे वाले का नुकसान कर रहा है। वो साथ में रहते हैं लेकिन वो क्या कर रहा है, दूसरे वाले का नुकसान कर रहा है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। इसके अंदर क्या होता है, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं। ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे को फायदा करते हैं। ठीक है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या था, फायदा सिर्फ एक ही का हो रहा है और दूसरे का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होगा कि दोनों एक साथ रहते हैं, दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स, और वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ वो मतलब खाना या जो भी चीजें हैं जो उनको ग्रोथ के लिए चाहिए वो शेयर करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो साथ में रहते हैं और वो शेल्टर मतलब रहने की जगह और जो न्यूट्रिएंट्स है वो शेयर करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, a relationship in which organisms live together and share shelter and nutrients. So this type of relationship is called symbiotic relationship. Example देखते हैं हम symbiotic relationship का, certain fungi live in the roots of trees. The trees provide nutrients to the fungus and in return receives help from it to take up water and nutrients from the soil. ठीक है, तो अभी हमने फंगी के बारे में पढ़ा। तो कुछ फंगी ऐसे होती हैं, यूजफुल है यहाँ पर फंगी क्या करती है, ट्रीज की रूट्स में रहती हैं। ठीक है, कुछ फंगी ऐसी होती हैं जो ट्रीज की रूट्स में रहती हैं। तो रूट्स में वो रहती हैं। अब फंगी आपको पता है कि खाना खुद से नहीं बना सकती, दे आर नॉन ग्रीन एंड दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, तो वो ट्रीज से खाना लेती हैं। ठीक है, अब फंगी वहां रहती हैं रूट्स में, तो ट्रीज क्या करते हैं, उन्हें खाना प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ट्रीज क्या करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं इन रिटर्न। तो फंगी क्या करती है, फंगी क्या देती है ट्रीज को, वो ट्रीज को हेल्प करती है सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेने में। ठीक है, तो दोनों का बेनिफिट हो रहा है, म्यूचुअली दोनों बेनिफिट हो रहे हैं। ट्री को क्या बेनिफिट मिल रहा है, इट इज टेकिंग अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स विद द हेल्प ऑफ फंगी एंड फंगी इज टेकिंग इट्स न्यूट्रिएंट्स, मीन्स इट इज टेकिंग इट्स food from the tree. So both of these are benefited. Okay, so this type of relationship is called symbiotic relationship. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लाइकन्स भी बोलते हैं इसको, लिचन्स भी बोलते हैं कई। ठीक है, सो लाइकन्स क्या होते हैं, एल्गा एंड फंगस लिव टुगेदर। हमने फर्स्ट पार्ट में एल्गी के बारे में पढ़ा था। एल्गी क्या होती हैं, दीज आर ग्रीन प्लांट्स एंड दे हैव क्लोरोफिल एंड दे कैन मेक देयर ओन फूड। ठीक है, तो लाइकन क्या होता है, इट इज अ एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन है एल्गा और फंगस का, जिसमें एल्गी और फंगस जो है वो
एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फूड एंड मिनरल्स टू द एल्गा। तो अब दोनों वो एक दूसरे की कैसे हेल्प करते हैं? जो फंगस है वो एल्गी जो है उसको शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, और इन रिटर्न एल्गी क्या करती है? उसको फूड प्रोवाइड करती है। और एल्गी के पास फूड कहाँ से आता है? एल्गी इज ग्रीन इन कलर, सो इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो खाना बना सकती है। ठीक है, जो खाना बनाने के लिए उसको चीज़ें चाहिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए जो एल्गी को चाहिए वो फंगस प्रोवाइड करेगी, और इन रिटर्न एल्गी खाना बना के एल्गी फंगस को प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट आई विल ब्रिंग टू यू सून। थैंक यू फॉर टुडे, टेक केयर।